आपका आज की वीडियो में। स्वागत आज है। की वीडियो में लेकर आए, इसका टाइटल है कैन इंडियाज 5000-year-old डिस्पोजेबल क्ले टी कप्स compete विद सिंगल यूज प्लास्टिक। एनीवे गाइस, देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का नीचे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। These little clay vessels might be the oldest disposable cups in the world. Evidence of their use in the Indian subcontinent goes back 5,000 years. That's the end of the Stone Age. Traditionally, they're meant to be sipped from and tossed out. The cups are called kulhads or kulhars or ba or shikora, depending on who you ask. हम कुल्हड़ कहते हैं ना। Whatever you call them, the convenient cups have nearly always been the preferred vessel for tea shops throughout the region. Enter single-use plastic and paper. Today, more and more tea shops are giving up their traditional kulhad in favor of alternatives, which means less income for kulhad craftsmen. काम करके भी हम लोग का पेट ठीक से नहीं भरने पाता, परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो सकता। Cheaper prices make plastic and paper appealing to businesses that can end up going through thousands of cups a day. But proponents of the kulhad say that plastic is bad for your health, bad for the environment, and bad for business. The reality is a bit more nuanced than that. Is the simple kulhad really better than a plastic cup? And how long will it stick around? We went to Calcutta, India to see how traditional clay teacups still stand despite the rise of paper and plastic. Jayaprakash Prajapati's workday lasts longer than the sun's. From 4 a.m. to 10 p.m., he and his family make about 2,500 kulhads each day. हम लोग का ड्यूटी 17 से 18 घंटा पड़ जाता है। He estimates he's made over 10 million cups since he started 25 years ago. अरबों लोगों ने आपके चाय से पिए होंगे, इससे आपके चाय पिए, उससे और अधिक भी हो सकते हैं। कितनी खुशी है उनके चेहरे Their पे। design is deceptively simple. Unpainted, handleless vessels for drinking tea. केवल प्लेन का प्लेन ही देते हैं, एकदम शुद्ध देते हैं। It's a design that's been perfected over thousands of years by generations of craftsmen in India. कि हम लोग शुरू से ही हम लोग के बाप दादा करते आए हैं, हम लोग भाड़ बनाते आए हैं और अभी तक हम लोग बना रहे हैं। It's hard, relentless work. बहुत गर्म है। पका रहे हैं ना। After unloading the previous day's batch from the oven, workers prepare the clay for today's array of kulhads. सबसे ज़्यादा मेहनत पहले इसमें तो है मिट्टी बनाना। They use a wire and their feet to slice and mix the clay, evening out its consistency and making it easier to work with. This clay, fresh from the ground, कितना is अच्छा the workout हो only रहा है इनका। ingredient in Jayaprakash's kulhads. And it gets more expensive year after year. मिट्टी का अभी रेट तो फिलहाल बहुत हो गया है, पहले तो कम ही था, अभी 10 से 11 हज़ार रुपया गाड़ी आता है। He has no choice but to purchase from local sellers at whatever price the Potters Union sets. The cost of importing clay would eat into what little profit he already makes, and he can't use just any soil. इस मिट्टी में लहसुन है, तो सब मिट्टी में बालू मिट्टी है, उसमें लहसुन नहीं है। क्या नहीं है? Before it's ready to shape into Listen, यानी kulhads, कि bits of stone and grass need to be रेत। removed from the clay. Pebbles could cause the cups to explode in the oven, and grass could burn away and leave holes. तो छेदा रहेगा तो चाह गिरेगा। Traditionally, it's men who make kulhads, but everyone in Jayaprakash's household works to keep up with demand. घर का जो काम है थोड़ा लेडीज़ लोग जो हैं हम लोग का अपना खाना पीना बनाने के बाद समय बचता है तो अपना वो भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं, थोड़ा हम लोग को भी राहत मिल जाता है। The tea shops he supplies expect deliveries daily. हम लोग का चाय की दुकान में कोई दुकान है 1000, 1500, 2000 भी भाड़ लग जाता है।
At its current size, Jayaprakash's workshop can only manage to produce around 2,500 cups a day. This makes it difficult to create any sort of backstock, meaning the workshop has to be in perpetual production mode. यानी पहले तो बड़ा बाज़ार के अंदर में इतना माने कुल्हड़ लगता था कि हम लोग देने नहीं सकते थे। जब से ये कागज़ कप प्लास्टिक कप निकला है तब से बहुत नॉर्मली हो गया है। ये मेरे हमें The नीचे air कोयला है dried ना? kulhads are laid out in a series of tight concentric circles and fired overnight. सावधानी जितने सावधानी रखेंगे तब तो बचेगा, नहीं तो सब टूट जाएगा। This formation efficiently bakes up to 10,000 kulhads at a time. अच्छा ऊपर नीचे। But right now it's monsoon season, which means even after a night in the oven, the kulhads might not be dry. काम लो हो जाता है, लॉस होता है, क्योंकि माल ठीक से सूखता नहीं है। मैंने सुबह का माल बनाया जो सूखता नहीं है, और शाम का भी माल जो बनाया होता है वो भी भट्टी में ठीक से नहीं सूखता। Setbacks like this make it even harder for Jayaprakash to keep up with the already overwhelming demand. पानी में न पानी माटी का भार कैसे सुखाएगा। जब आता नहीं तब हम देखो कागज के काम में चाह देता है। Paper and plastic cups are cheaper and more convenient than kulhads, making them an appealing alternative to tea shops operating on razor-thin margins. Vendors like Kashinath Kole buy cups from Jayaprakash for about half a rupee apiece. He can get paper cups for close to a fifth of a rupee apiece. इसमें 6 रुपया देते हैं और ये जो कागज के कप 5 रुपया। Despite the markup, most of the 100 to 150 cups of tea he sells each day come in kulhads. भान में चाय पीने से इधर बहुत आदमी बोलता बहुत अच्छा, और भान नहीं रहेगा वैसे चाय पीने से मज़ा नहीं आता है। टेस्ट Kulhad उसका होता है proponents ना? are adamant that tea sipped from clay tastes better. देखा? वो भान में चाय डाले देखो, वो तो माटी का भान ना थोड़ा से टान लेता है। वो मिट्टी का भी रहता है और जो आग में जलाता है तो। With plastic, it's more than flavor that seeps into your tea. Numerous studies have shown that hot liquids in plastic cups, as well as paper cups coated with plastic, can leach microplastics and a chemical called bisphenol A from the container. Even in fine amounts, bisphenol A, or BPA, has been linked to cancer, reproductive issues, problems with brain development, and many other diseases and dysfunctions. Research on microplastics is limited, but they're associated with a similar laundry list of potential issues. There's no evidence that drinking from a kulhad has any negative effect on a person's health. But what about making a kulhad? कमर टूट जाती होगी भैया पूरे समय झुके कमर टूट हुए। जाता है, बहुत मेहनत होता है। ज़्यादा उम्र तक नहीं होने सकती। आपके पापा कितनी एज में रिटायर हो गए? पापा हमारे 40 से 45 साल में रिटायर हो गए। 40 साल में ही हो गए। आपकी उम्र कितनी भी है? हमारी उम्र अभी 36-37 साल है। इसमें ज़्यादातर करके सांस का माने बीमारी होते हैं। धुएं में क्योंकि काम बस वही थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होता है। The kulhad might not be as eco-friendly as it's chalked up to be either. Kulhad proponents claim that because the cups are made from earth, they are easily biodegradable. But there haven't been any formal studies about this. Adding moisture to air-dried clay easily dissolves it. But fired clay is chemically changed into a more durable material. The reason we even know kulhads have been used for 5,000 years is that modern archaeologists were able to find surviving examples of them. Some craftsmen will bake their kulhads at lower temperatures to make the final product more easily disposable. But most kulhads aren't composted or handled in any specific way. When he's done drinking, Sumit's kulhad will go into the trash. जो मैला झाड़ू फाड़ू रास्ता झाड़ू लगाता है ना, वो आवार उठा के वो कहाँ पर फेंक देता है।
Despite the immense challenges, Jaya Prakash is determined to keep making kulhads. He hopes to make more profit in order to improve conditions and hire new craftsmen. अच्छा माने प्रगति जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जितना आगे जा रहा है उतना कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि जितना खटनी है इसमें मेहनत है उस हिसाब से पैसा नहीं है, इसीलिए और नए बच्चे हम लोग के यहाँ पे। Kulhad prices are set by a union, so Jaya Prakash has no control over them. And if prices get too high, tea shops might turn away from them completely. सरकार यदि मदद करता तो हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होती। सरकार हम लोग के लिए कुछ भी नहीं करने में असमर्थ नहीं करने पा रही है। The Indian government has made efforts to support Kulhad craftsmen in the past. Like in 2020, when the Railways Minister announced that all of India's trains and 7,000 stations would serve tea exclusively in Kulhads. The initiative started with only 400 stations. More joined over the years, but progress appears to have stalled. Despite initiatives like these, Kulhad craftsmen are dwindling. नहीं, उनकी तादाद दिन पर दिन कमी हो रही है। बहुत से लोग छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें माने जो सब वगैरह चीज़ के दाम हो गए हैं ना, अभी लोग को पोसाई नहीं देता। Jaya Prakash says he doesn't feel like he's competing with other craftsmen. केवल हम लोग को कंपटीशन प्लास्टिक से ही है। Plastic has already taken out a previous arm of his business. प्लास्टिक का जो बाटी निकला है, सब अभी सब उसी में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का वो सब मार्केट चला गया, माने हम लोग इसी के भरोसे थे, लेकिन अभी हम लोग को समझ लिए बहुत तकलीफ होता है। काम करके भी हम लोग का पेट ठीक से नहीं भरने पाता, परिवार का पालन पोषण भी ठीक से नहीं हो सकता। His family has relied on this workshop for almost 100 years, but its future is uncertain. लेकिन जैसा लगता है कि भाई जब तक उनका माने हिम्मत या माने बल पौरुष चलेगा तब तक तो करेंगे, जब नहीं करने लायक रहेंगे तो भाई छोड़ देंगे, फिर नहीं। टाइम के साथ साथ एक चीज़ जो है वो देखिए कि भाई जो पुराने ट्रेडिशंस है, पुराने कल्चर में यहाँ पर जो है बात कर रहा हूँ अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ, कि भाई आपको जो है ना वो ख़त्म होते हुए जो है वो दिखाई दिए हैं। ख़ास तौर पर मैं अगर लाहौर जैसे बड़े शहर की बात करूँ तो बहुत सिलेक्टेड प्लेसेस होंगी जहाँ पर आपको जो है वो कुल्हड़ में जो है वो चाय मिलती होगी, या थोड़े फैंसी रेस्टोरेंट जो है जो थोड़ा सा ना उसे वानाबी टाइप करके जो है लोगों को प्रेजेंट करते होंगे कि भाई ये हम आपको बहुत एक डिफरेंट चीज़ जो है वो दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आप अगर देखा जाए ना तो एक ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़े हुए जो लोग थे उनके कारोबार जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हुए हैं। और मैं इंडिया में भी देखता हूँ तो इंडिया में आपको एक ट्रेडिशन जो है अभी भी जो है वो बरकरार नज़र आता है कि लोग कुल्हड़ वाली चाय जो है वो पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं अभी ये देख कर के भाई प्लास्टिक के कप्स जो हैं या पेपर के जो कप्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टफ एक टाइम दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया है, लाइक जैसे हम लोग वीडियोस के माध्यम से चीज़ें देखते हैं, तो जैसे हम पीएम मोदी जी की अप्रोच देखते हैं, मुझे इसीलिए उनकी सोच बहुत पसंद आती है कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो लोकल चीज़ें हैं या जो लोकल प्रोडक्शन है, उनको वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और लोगों की एक तवज्जो लेकर आते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, जब हम लोगों ने दिवाली पर दियों का एक चलन देखा, वो भी पीएम मोदी जी ने उस साइड पर लोगों की एक तवज्जो जो है वो लेकर आए। अब जैसे कुल्हड़ की चाय को लेकर जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उससे भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है कि 400 स्टेशन पर ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिली। तो मुझे लगता है धीरे धीरे जब आप एक चीज़ को पुश करते हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जो मेकर हैं उनके लिए एक अच्छा होता है, तो डेफिनेटली उनको भी एक सहायता मिलती है कि वो इस काम को करें। यस, मुझे लगता है विद टाइम हम लोगों की आदतें बहुत चेंज हो चुकी हुई हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर जो इन चीज़ों का चलन है ना, लाइक कुल्हड़ वाली चाय हो गई या थाली का इस्तेमाल करना, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी और लोग जो है वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर इन चीज़ों का ट्रेंड आया तो वो इंडिया की वजह से आया, इंडियन वीडियोस देखकर। ये वरना मैंने कुल्हड़ वाली चाय का कभी यहाँ पर सुना भी नहीं था कि मिट्टी के बर्तनों का अगर देखा जाए ना तो एक हिसाब से काफ़ी आपको ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म होती हुई नज़र आई थी, लेकिन अब दोबारा से आपको ये ट्रेंड जो है वो नज़र आता है। यस, कप्स इतने छोटे नहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलते, वो बड़े मतलब होते हैं कप,
लेकिन ये कि यस मुझे ये लगता है कि ट्रेंड उधर से ही आया। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखा जाए ना तो आपको जो है ना जो कुल्हड़ की चाय होगी या थाली का भी जो सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा यानी कि एक्सट्रीम प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, मिड प्रीमियम आप कह लें, वहां पर आपको जो है वो देखने को फाइन मिलता है। डाइनिंग में भी अब आपको जो है वो थाली का मतलब काफी ज्यादा रेस्टोरेंट्स प्रीमियम ही हो गया ना। एक जहाँ पे आप ज्यादा पैसे देकर, अब जैसे क्या नाम देते 5 रुपए की चाय या 6 रुपए की, चले आप आम नॉर्मल मैं यहाँ पे चाय के कप की बात करूँ तो आपको 30 रुपए 40 रुपए इस तरह कप जो है वो चाय मिलती है बाहर। तो वो भी जो है कप होते हैं वो जो चीनी वाले जो कप होते हैं जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो छोटे छोटे ही होते हैं लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं। कुल्हड़ जो है अफोर्ड करना मेरा ख्याल है कि शायद उनके बजट से जो है वो आउट जो है वो हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि जो बजट है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ है। जैसे अभी वो दुकानदार ने जो है बताया कि उन्हें जो है वो पेपर कप जो है वो सस्ता पड़ता है, मट्टी वाला कप जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो उस हिसाब से 1 रुपये का फ़र्क जो है वो चाय की प्राइस में भी जो है वो आ जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं भाई उन्हें जो है कुल्हड़ का टेस्ट अच्छा लगता है वो उसी में चाय पियेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे कप में 1 रुपया बचाने के लिए दूसरे कप में पियेंगे। ऑन दी अदर साइड पे भी मैं और भी बहुत सारी चीज़ों की अगर बात करूँ, जैसे पहले जो है स्टील के कप होते थे, उससे पहले तांबे के कप होते थे, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा कारोबार था और मुझे उनमें सबसे अच्छी चीज़ लगती थी उनके ऊपर जो कारीगरी जो है वो दिखाई जाती थी। टाइम के साथ साथ अगर देखा जाए तो वो भी चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन अब आकर जो है ना कुछ लोग मैं देखता हूँ कि वो प्रेफर करते हैं कि भाई वो चीज़ें जो है ना वो वापस आनी चाहिए, वो जो कल्चर था वो दोबारा से यहाँ पे भी रिवाइव होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि भाई आप दुनिया की किसी भी कॉर्नर में रहते हैं ना, आपको उस लैंड का कल्चर जो है वो पता होना चाहिए कि भाई वहाँ का कल्चर क्या है। यार उस लैंड का भी पता होना चाहिए, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आपको अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ना अपनी हेल्थ के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हुआ है ना। जैसे उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल बताया, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे कैसे आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये पता सबको है। बट उसके बावजूद क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में हम एक लंबी लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि हम एक मरतबा ही पैसे लगाएंगे और हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली होती हैं। और मैं अगर हमारे यहाँ पर कल्चर की बात करूँ तो हमारा तो बहुत ही फेक कल्चर है। सो यहाँ पर तो ज़्यादा फैंसी चीज़ें जो हैं वो पसंद की जाती हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है इनका जो एक इस्तेमाल है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में आएगा, बट ये कि आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम लगेगा, हाँ, वो देखने को मिलेगा। वैसे अगर ये से कप्स की बात करें, मुझे वैसे कुल्हड़ वाले कप्स भी अच्छे लगते हैं। मेरे वैसे इतने मिनी कप्स अगर हम देखें ना सीरियसली मुझे ऐसा लगता है ये हमारे जैसे लोगों के लिए ना एक सिप है, यानी इतना छोटा सा मुझे लगा है। तो यार हम असल में ना हमारी चाय जो होती है ना वो दूध पत्ती वाली होती है, ठीक है ना। तो वो जितना इतने कप ने लोगों का काम करना है ना हमारे वो बाकी इतना कप होगा नहीं। कहने का मकसद ये है कि मतलब मुझे शौक है कि मैं ये एक्सपीरियंस तो जरूर यार ये वो हिसाब है। देखिए मैं घर में जो है ना कॉफी का कप पीता ना, मैं वो मग भर के पीता हूँ, ठीक है। और वो जब हम गए थे तो वहाँ पे जो शॉट था मुझे लगा शायद वो वैसे उसका नाम होगा, कोई रेसिपी होगी, वो इतनी थी, उन्होंने मेरी कुप्पी लाकर जो है ना वो दे दी, वो मेरी कुप्पी थी, ठीक है ना। और मैं हैरान में है इतनी महंगी, लेकिन जब वो मैंने पिया ना तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी तो उससे मुझे जो है वो आइडिया हुआ कि अच्छा उसके इक्वल वो आ जाता है। बिल्कुल। वैसे मुझे जापानीज कप भी बहुत अच्छे लगते हैं कि जो उनके कप्स है ना जिसमें वो चाय पीते हैं या कावा वगैरह कुछ भी जो भी उनकी ड्रिंक होती है वो पीते हैं, तो मुझे वो भी बड़े पसंद हैं। आई मीन मुझे अच्छा लगता है अगर आप उस तरह के भी कप्स में, वो भी छोटे छोटे होते हैं, बड़ा खूबसूरत उनके कप्स होते हैं। तो कल्चर मुझे लगता है बड़ा एक ना आपको इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करता है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हम लोग को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि नो डाउट मेहनत तो बेतहाशा इस काम में। मुझे एक टाइम पर लगा करता था कि मतलब ऐसे ना ड्राई करके जो है वो मतलब धूप में रख के सुखा कर जो है वो बन जाते हैं मिट्टी के बर्तन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया ओवरनाइट उसको एक अवन में रखना पड़ता है। और वो जो जिस तरीके से कोयलों का अवन बनाया वो मतलब बहुत डिफिकल्ट है। और स्पेशली जब बरसात का मौसम होता है उस टाइम पर या सर्दियों के मौसम में उनको बनाना और मतलब ऐसे ड्राई करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से और अवेयरनेस जो है वो लोगों में क्रिएट की जा सके कि लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं। बिल्कुल। और सॉरी वो जहाँ पे ने डिग्रेड करने की बात की तो वाकई में एक चीज़ है
कि हम जो है ना चले उस तरह तो रिसाइकल नहीं होते, क्योंकि हम जब हिस्टोरिक चीज़ें देखें डिग्रेड तो क्या करने की बात? यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो अच्छा। होते हैं उसमें अगर देखें तो बहुत सारे पुराने मिट्टी के बर्तन जो है वो हमें जो है वो नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई ऐसी चीज़ों में ना ऐसी चीज़ों को आप और भी बहुत सारी चीज़ों में ग्राइंड करके दोबारा से इसे जो है ना रीयूज ला सकते हैं। बिल्कुल। सो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिए और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।